be starting physics chapter number 2, 10th ICSE. So the chapter name for this is what? Work, energy and power. It is work, energy and power. So the chapter name is about work, energy, power. So in this video we're going to talk about what is work. So I'll start with some simple example. Okay? To do some particular work, we require what? Some amount of energy. Yes or no? I'll give you an example that if let's say you guys are not having anything, ठीक है, तुम लोग ने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी है कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे बॉडी में एनर्जी होगा क्या? नहीं, राइट? सो एनर्जी कहाँ से मिलता है हम लोगों को? जैसे तुम लोग बायो में देखते हो, एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस, यस और नो? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, यस और नो? सिमिलरली हम लोग भी व्हेन वी कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ फूड, वी हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसाइड अस, यस और एवरी पार्टिकल हैज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी को क्या करना है? इंक्रीज करना है. सो वी हैव टू कंज्यूम समथिंग, सम न्यूट्रिएंट्स, some vitamins, some fats, proteins, yes or no? So we need to consume those. If I have energy, then only I can do some work. So what is energy? Energy is what? The capacity to do work. That means if you have energy, then only you will be able to do some work. Okay? If I give an example, let's say one of the boy, okay, he is admitted to hospital. Yes or no? He is like he had some malaria or something. Okay? And as soon as उसको discharge मिलता है, he is coming back home, right? And he has some weakness. Weakness as in he doesn't have any energy. So will he be able to do any work? Yes or no? No, he won't be able to. He won't be able to join his office or something, right? Because still he has a lot of weakness. Yes or no? That weakness can be covered by increasing the energy. How do we increase the energy? By giving some medicine or proper nutrient ka food and everything. So energy is everything. Okay? If you want to do some work, okay? If you want to do some work, okay? अगर वर्क करना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? एनर्जी. सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज व्हाट? द कैपेसिटी टू डू वर्क. कितना अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है, राइट? देयर आर बॉय 1 एंड बॉय 2. बॉय 1 कैन वर्क फॉर 10 hours straight without taking any break. Boy 2 works only for 5 hours and he wants break for let's say 2 hours. Yes, so that means the capacity to do work is greater in boy 1 because he's straight away working 10 hours straight. Yes, so without taking any break. Clear? That means he has more energy compared to this. Yes or no? ये जल्दी क्या होता है? टायर्ड हो जाता है. That means he has less amount of energy. They both are doing work. They both are doing same work, but he has greater amount of energy and he is doing work faster. Maybe in 10 hours he is taking maybe 12 hours because he is taking 2 hours break. Getting my point? This is energy, the capacity to do work. Okay? So your work now, whenever you are doing work, you require some amount of force, energy. Required energy, yes or no? जैसे बोला. So energy is what kind of force? You are applying some force. I'll give an example. Let's say there is a box here. Yes or no? I'm pushing that box. Easily क्या हो गया? पास हो गया. Yes or no? Easily क्या होगा? आगे push हो जाएगा. So force is what? Push or pull. If you are pushing or you are pulling, that is known as force. So when you apply some force, either you push or either you pull, that is known as your work done. समझा? मतलब वो work done हो रहा है. That means body is getting displaced. Yes or डिस्प्लेसमेंट 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है फिजिक्स में. डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी का अपना मूव हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. सो व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, आइदर पुश और पुल, द बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. दैट इज नोन एज योर वर्क डन. सो वर्क डन इज व्हाट? इफ आई राइट द डेफिनेशन, ओके, वर्क डन इज व्हाट? बेसिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हिच द बॉडी इज व्हाट गेटिंग. यस और नो? सो वर्क डन इज व्हाट? F into S, where F is your force, the force which we are applying, and what is S? S is your displacement. Yes or no? S is your displacement. That is known as a work done. Yes or no? If let's say if let's say this is a wall, right? Yes or no? अगर मैं wall को push कर रहा हूँ, ठीक है? Will the wall move? No, right? Yes or no? That means your displacement is 0. If the displacement, this wall is not moving. If this wall is not moving, displacement is 0. That means your work done will be also 0 because there is a multiplying factor. So W is equal to F into 0. So answer is 0. That means your work done is 0. Yes or no? Now there are two types of work. One is the mental work, other is a physical work. Okay, so we are right now talking about a physical work. Yes or no? अभी exactly क्या हो रहा है? You are seeing my video, you are watching my video, maybe lying on the bed, maybe sitting at a place or something, right? So right now you guys are not doing any work. Which work? Physical work. But you are doing a mental work. You are studying something. Yes or no? You are gaining knowledge.
clear? So this is a mental work, but I'm talking about physical work. Yes or no? Here physical work is zero. You guys are not doing any physical work. You are sitting, ideally you are just watching my video, you are gaining some concept, you are gaining some knowledge. Yes or no? You are studying something. That is a mental work which you guys are doing. Yes or no? You are not doing any physical work. But here we are talking about physical work. So please ऐसा consider मत करना कि सर आपने तो बोला कि body compulsory move होना चाहिए. ठीक है, जैसे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव होना चाहिए. तो जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग से आई एम गोइंग ऑन अ जॉब, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, आईटी वर्क में काम कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग आइडियली, आई एम डूइंग सम वर्क. तुम लोग आई एम डूइंग वर्क, बट सर वो तो वर्क नहीं है. आपने बोला डेफिनेशन के हिसाब से दैट इज अ मेंटल वर्क यू आर डूइंग. यू आर टाइपिंग, यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग, यू आर डूइंग सम वर्क. Yes or no? You are doing some management, something or other. That is a mental work we are talking about. Yes. So physical work is zero at that moment. So here we are talking about physical work. कि body move होना ही होना चाहिए. अभी ये body है, वॉल है, उसको मैं पुश कितना भी करूं मूव होगा. ठीक है ना, मैं एवेंजर नहीं हूँ कि यहाँ पे ऐसे पुश किया, ऐसा क्या हो गया, मूव हो गया. ठीक है, हल्क नहीं है कि ऐसा पुश किया, एक पंच मारो तो ये बॉडी टूट जाएगा. यस और नो? ठीक है, ऑब्वियसली वो भी सब ग्राफिक्स है. ऐसा कोई नहीं है जो बॉल को ऐसे मूव कर सकता है इजीली, राइट? दैट मींस वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो. दैट मींस योर वर्क डन इज जीरो. फिजिकल वर्क इज जीरो बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग. Yes, if your body is not moving, that means work done is considered to be zero. Yes or no? So work done, when the work done is zero, there are two conditions. Either there is no force applied. Obviously मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स था, मैंने बोला मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं इसको अरे जा, नहीं जाएगा obviously because I need to apply some force, right? जब force apply करूंगा तभी force is zero. So there is no force applied, there is no work done. But let's say if I am applying force, yes, I am applying force wall पे, but still it is not moving. Then also is work done is zero. That means move होना चाहिए, displace होना चाहिए body. If body is not displacing, that means still the work done is what? Zero. That means either force is zero or displacement is zero. ठीक है, force ऐसा कभी नहीं होगा जीरो होगा. जब मुझे वर्क डन करना है ऐसा कभी नहीं होगा फोर्स जीरो है. ठीक है, मैं ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करूंगा तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा अरे वर्क डन होना चाहिए. आई एक्सपेक्ट दैट इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स वर्क डन होना चाहिए. बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज क्या होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आफ्टर अप्लाइंग फोर्स. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स मैं ऑलवेज एक्सपेक्ट करूंगा कि बॉडी मूव होना चाहिए. ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे अगर मैंने कार रख दिया, कार को मेरे को पुश कर, पंचर हो गया, ठीक है, पंचर हो गया, मैं कार को ऐसा मस्त में पुश करने का ट्राई करूँ, होगा नहीं होगा मेरे अकेले से, क्योंकि बॉडी बहुत हैवी है. I cannot move that particular body. That means work done is zero. कितना भी प्रेशर, कितना भी फोर्स अप्लाई कर लूं, मेरे को पसीना छूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो कार मूव नहीं होने वाला है. Yes or no? But let's say there are two. मेरा एक फ्रेंड आ गया, ठीक है, there are two of them. Then if I am trying थोड़ा little move होगा, that means work done कर रहा है. ऐसा मतलब नहीं है कि मैं work done नहीं कर रहा था, ठीक है, work done जीरो था, but I was applying some force. एनर्जी मेरा यूटिलाइज हो रहा था. पर एनर्जी क्या हो रहा था? यूटिलाइज हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, वेस्ट ऑफ एनर्जी था वहां पे. ठीक है, जैसे मैं बॉल को कितना भी पुश करूंगा, दैट इज आई एम अप्लाइंग एनर्जी, आई एम अप्लाइंग फोर्स, बट वर्क डन इज नॉट हैपनिंग, राइट? मतलब मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज बॉडी मूव होना चाहिए कंपल्सरीली. दिस इज द कंडीशन फॉर वर्क डन. Getting my point. So what is the definition they have given in your textbook? We'll see. What definition given है? So work is said to be done only when the force applied on the body makes the body move. The force applied on the body, ठीक है? Force applied on the body makes the body move. If it is not moving, that means work done is zero. ठीक है? Box को push किया, work done is there. Because मेरा जो force था, box उसकी वजह से move हुआ. Yes or no? ठीक है, जैसे वॉल का एग्जांपल, there are a lot of examples जहाँ पे वर्क डन जीरो रहेगा, जो हेवी बॉडीज है, राइट? ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ वर्क. अभी नाउ देयर आर टू फैक्टर्स. कैसे वर्क डन हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, अगर लेट्स से मतलब वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स. अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सो देयर आर हाउ मेनी टू फैक्टर्स. अगेन फर्स्ट इज व्हाट फोर्स, सेकंड इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, लेट्स से मेरे पास क्या है, F1 एंड F2 दो फोर्सेस है. ठीक है, लेट्स कंसीडर F1 इज ग्रेटर देन F2. Here F1 is greater than F2. That means जो भी बॉडी डिस्प्लेस होने वाला है उसमें वर्क डन किसका ज्यादा रहेगा? F1 का ज्यादा रहेगा. बस फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इज ग्रेटर. समझा, फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर हियर. सो इफ फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी आल्सो ग्रेटर. सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, ठीक है, वर्क डन विल बी ग्रेटर. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे W1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? F1 इंटू S. दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है. वैसे W2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? F2 इंटू S. ठीक है, ये F1 इज ग्रेटर, F2 इज स्मॉलर. डिस्प्लेसमेंट दोनों का 5 हो रहा है, but यहाँ पे वर्क डन क्या अप्लाई किया मैंने? 5 न्यूटन. लेट्स से 5 किया तो 5 इंटू 5 आंसर आएगा 25. यहाँ पे क्या आएगा? लेट्स से 3 किया तो 3 इंटू 5 आंसर क्या आएगा? 15. दैट मींस वर्क डन फॉर W1 विल बी ग्रेटर. सो योर वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स, कि कितना ग्रेटर फोर्स है.
इफ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, इफ यू आर कंपेयरिंग टू वर्क डन, तो जिसमें फोर्स ज्यादा रहेगा वहां पे वर्क डन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा. यस, यहाँ पे फोर्स ज्यादा था, यहाँ पे F1 का वैल्यू था 5, यहाँ पे F2 का वैल्यू था 3. ठीक है, दोनों डिस्प्लेस इक्वल हो रहा था. ठीक है, दोनों डिस्प्लेस इक्वल हो रहा था, बट स्टिल यहाँ पे क्या था, इसका वर्क डन वाज ग्रेटर कंपेयर टू दिस वर्क डन, बिकॉज मल्टीप्लाई किया. सिंपल एज इट इज. यस और नो, सिंपल. दैट मींस योर वर्क डन डिपेंड्स ऑन योर फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर, वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर. नाउ द सेकंड फैक्टर, लेट्स से अभी इसका रिवर्स, वाइस वर्सा करते हैं. व्हाट विल डू कि मेरे पास फोर्स एक फोर्स है 5 न्यूटन का. ठीक है, अभी मेरा बॉडी S1 और S2 क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहे हैं बट बॉडी दोनों अलग अलग मूव हो रहा है. हो सकता है मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 5 न्यूटन, जहां पे एक क्या है, एक खाली बॉक्स है, एक भरा हुआ है. ठीक है, जहां पे वेट दोनों में से बॉक्स 1 का क्या कम है, तो मैं बॉक्स 1 पे 5 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा, बिकॉज वो खाली बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है. यस, ये क्या है, इट इज नॉट एम्प्टी बॉक्स. So if I am applying a 5 Newton of force, ठीक है, on two different things, तो obviously the displacement for both the things will be different. इसलिए S1 अगर मैं बोलूंगा S1 का displacement was greater than S2, जहां पे यहाँ पे body different है, empty है, यहाँ पे क्या empty box नहीं है. That means again if I do W is equal to क्या होगा 5, ये लेट से हो रहा है 5 न्यूटन से, सॉरी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर्स ओनली. ठीक है, सो 5 इंटू वापस क्या होगा 5, 25 आ जाएगा. W2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, वापस क्या हो जाएगा 15. समझा? दैट मीन्स वर्क डन इज ग्रेटर इन द वर्ड वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर. दैट मीन्स अगेन वर्क डन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, कितना ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट है. सो वर्क डन इज डिपेंड ऑन बोथ द फैक्टर्स, फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. ग्रेटर द फोर्स, greater is the greater is the work done, greater the displacement, greater is the work done. Yes or no, this factor. So work is depend on both the factors. Clear? हम लोग ने clear किया, right? Okay, great. So what is work done? Again, the amount of work done by a force. The amount of work done by a force. So amount of work done by a force is equal to what? The amount of work done by a force is equal to the what? Product of force and the amount of body has been displaced. ठीक है? So the work done is defined as, ठीक है, in actual manner. उसके पहले जो बोला yes के body क्या होगा, displace होना चाहिए जो भी amount of force apply किया. Yes, that is also true. But in actual manner, this is the definition of what work done. Work done is what basically product of what? Force into displacement. The amount of force applied to do work, ठीक है, with the what body displaced, this amount is known as your work done. The product of what? Force into displacement is your work done. Yes, clear है? ठीक है? So we are done with this amount of force. ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक क्या होगा, अभी लेट्स से अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम लोग का 0, ठीक है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0. रिमेंबर दिस, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो वर्क डन इज 0. बॉडी इज नॉट डिस्प्लेसिंग, वर्क डन क्या होगा 0 होगा ऑलवेज. क्लियर है? यस. नाउ अभी I'll give you few examples, okay? Let's say यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया. लेट्स से यहाँ पे अप्लाइंग का फोर्स, तो ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या नीचे फ्लोर है. बॉक्स कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है? ऑब्वियसली इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है? लेट्स से इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे बॉल रखा जो रोलिंग डाउन, यहाँ से मैंने फुटबॉल है तो फुटबॉल से यहाँ पे किक किया, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स व्हाटएवर आई एम फोर्स अप्लाइंग, वही डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है. In both these cases, if I am applying a force, so in the same direction body is getting displaced. Yes or no? So always ऐसा नहीं होगा ना कि जो डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस होने वाला है. ठीक है, इज इट गोइंग टू हैपन ऑलवेज? नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑलवेज. सो व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग फोर्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि बॉडी वही डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. ठीक है, सो फॉर दोज केसेस we have two ways to find the what work done. हम लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है W is equal to क्या F into S, ये तो है. बट whenever ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है कि जो डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही डायरेक्शन में क्या रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट. ये हो गया या फिर ऐसे हो गया, ये डायरेक्शन फोर्स किया तो ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, अगर मैं ऐसे अपवर्ड्स फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अपवर्ड्स होगा. अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल. समझा? जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वही डायरेक्शन में मेरा बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. बट ऑलवेज दिस इज नॉट ट्रू.
ऑलवेज ऐसे नहीं होगा कि जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वही डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा बॉडी मूव होगा. दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यस, सी अंडर सम सर्कमस्टांसेस ऐसे होगा, ठीक है, नॉट ऑलवेज. देयर आर सम सिचुएशन जब भी ऐसे होगा, मैं जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस नहीं होने वाला. गेटिंग माय पॉइंट? आई गिव यू दोस एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट यू नीड टू वॉच. ये जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हम लोगों ने देख लिया, राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, सो इन विच वे वी कैन फाइंड द वर्क डन. दैट मीन्स इफ आई गिव एन एग्जांपल दैट इफ आई ड्रॉ समथिंग, राइट, आई गिव एन एग्जांपल, ठीक है. मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, ये तुम लोग का लेट्स से एक बॉक्स है. दिस इज योर बॉक्स, ठीक है. यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज अ बॉक्स, फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे स्लोप है. सो रिमेंबर, अभी स्लोप है तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल. बट मेरा बॉडी कैसे मूव हो रहा है, डिस्प्लेस कैसे हो रहा है, डिस्प्लेस ये डायरेक्शन हो रहा है, मतलब मेरे को ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, ठीक है. यस और नो? डायग्राम गिवन है टेक्स्ट बुक में, इफ यू वांट यू कैन लुक एट द डायग्राम, ठीक है. So मेरा ABC, I'll consider this. So body is getting displaced in the direction of AC. Example मिल गया तुम लोग को कि मेरा force is applied in this direction. ठीक है, force ये direction में, body is displacing in this direction. Yes or no? तो सर ऐसे कैसे होगा? हो सकता है ना, यहाँ पे force apply किया तो मेरा body ऐसे ट्रैवल करेगा स्लोप पे, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे वॉल है तो स्लोप पे जाएगा, राइट. Yes or no? तो ऐसे केसेस में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, सिंपल चीज करना है. जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में फाइंड करो. दैट मींस अगर मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा फोर्स ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, ठीक है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में दे आर इन व्हाट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है. डिफरेंट डायरेक्शन में तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट फोर्स ये डायरेक्शन में है तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को ये डायरेक्शन में कर दूंगा. ओके, आई डू वन थिंग, मैं अलग से लिखता हूं. There are two cases possible. Case number one. This is the actual thing which is happening here. The force horizontal है और तुम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड ऐसे ऐसे. वो बॉक्स ऐसे ऐसे मूव होके ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा. अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे बॉक्स क्या होगा, मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज एक्चुअली वो अभी मूव नहीं हो रहा है. सो दिख रहा है तुम लोग को बॉक्स ऐसे इंक्लाइन मूव होना है, बिकॉज बट फोर्स ऐसे डायरेक्शन में, horizontal force is applied in the horizontal direction only, but displacement is inclined. So during this circumstances or during this situation, what we can do, there are two methods. Method number one, मैं क्या करूंगा, फोर्स जो डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन से क्या कर दूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में फाइंड कर दूंगा. दैट मीन्स आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं आई विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली. मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ force. So method number one, find the displacement in the direction of force. Find the displacement in the direction of force. मतलब जो डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन, मतलब मेरा फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है, बट मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरा फोर्स भी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है, समझा. सो बोथ, सो रादर देन दिस, ये जो है इसका डायरेक्शन चेंज करके मैं ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा. अभी हो गया दोनों का डायरेक्शन इक्वल. Yes or no? So ऐसे कर लूंगा. या फिर what I can do, I'll find the force along displacement. मतलब displacement कौन से डायरेक्शन में, ऐसे है, so force ऐसा है तो मैं force को ऐसे कर लूंगा, ठीक है. That means I'll change the direction of force. समझा, मैं उसको डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा. अभी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, फोर्स भी इंक्लाइंड है एंड क्या है, तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लाइंड है. सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द वर्क डन, and जब भी force and displacement are in the different direction, so there are two methods. Either you change the direction of displacement, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है, along force, ठीक है, along force मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का है वो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करो, और either find the force along the what displacement, along मतलब उसके साथ, उसके डायरेक्शन में, समझा. तो there are two methods. Either displacement को चेंज करो डायरेक्शन, और either force को चेंज करो. Yes or no? This is the way you can find work done. So we gonna do this two things only. कि मैं क्या करूंगा, वो कंपोनेंट को चेंज कर दूंगा, कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा. Yes or no? Yes, मैं वो डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा. एंड ऑफ द डे,
इफ यू नोटिस एंड ऑफ द डे हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, ये दोनों का आंसर और फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं, चलो। सो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, फर्स्ट विल स्टडी दिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो टॉपिक 1, ठीक है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट, बाय द फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैं चेंज करूंगा। सो कैसे करूंगा, आई विल टेल यू, ठीक है। अब ये रब कर रहा हूं, हम लोग को ओरिजिनल पता है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एबीसी हो गया, ये मेरा एबीसी हो गया, yes or no. So what I can do, I know that this is the 90 degree, right? ये 90 डिग्री है, क्लियर है। Now मुझे फाइंड क्या करना है, W is equal to F into S, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, W is equal to F into S, W is equal to F into S, right? यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स इज F, तो F का F ही रहेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड F है, yes or no, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हम लोग को नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, along this, along same direction, along same direction, yes or no, you have to apply it along the same direction, that means यही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट AB कंसीडर करेंगे। आई नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉक्स इज AC, आई नो दैट, बट हम लोग को क्या करना है, कंपोनेंट को चेंज करना है along the direction of force। So along the डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ऐसे करेंगे कैलकुलेट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी S के चेंज करके डिस्प्लेसमेंट विल बी AB। समझा तुम लोग को, क्या किया मैंने, बस डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड किया, क्लियरली समझा, यस। सो वी हैव व्हाट, अ ट्रायंगल ABC है, सो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। डायग्राम है तुम लोग के सामने, आई स्टार्ट विद द डेरिवेशन, ठीक है, मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। सो डेरिवेशन में कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है, आई विल से इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, क्या यूज पाइथागोरस थ्योरम, यस। ये मेरा थीटा, थीटा कहां से आया, बिकॉज इंक्लाइंड है, राइट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस ये इंक्लाइंड है, यस और तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड मैथ्स में पढ़ा है, सब ट्रिग्नोमेट्री एवरीथिंग, ये तुम लोग का थीटा इंक्लाइंड एंगल है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री 9th में पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज व्हाट, बेसिकली ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा इज योर बेसिकली, कॉस थीटा क्या है तुम लोग का, एडजेसेंट अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज, मैथ्स में सीखा, राइट, यस और एडजेसेंट या फिर बेस बोलते हैं, वन इज द सेम थिंग, राइट। सो हम लोग को कॉस थीटा अप्लाई करना है, बिकॉज ये थीटा यहाँ पे है, राइट, और मेरे को AB फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। सो थीटा ये है तो AB कभी आने वाला है, AB कभी आएगा, कॉस थीटा नहीं आएगा AB, क्योंकि एडजेसेंट है ना थीटा, ये एडजेसेंट हो गया, ये मेरा क्या है, एडजेसेंट हो गया, ये मेरा ऑपोजिट हो गया, यस और नो, यस। और ये क्या, ऑब्वियसली मेरा हाइपोटेन्यूज है, क्लियर है, 90 डिग्री यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये मेरा थीटा है, ये ऑपोजिट है। मेरे को चाहिए क्या, BC चाहिए, नहीं चाहिए, BC पिक्चर में नहीं है, मेरे को AB चाहिए, और AC मेरा एक्चुअल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज cos थीटा, बिकॉज मेरे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो व्हाट आई गोइंग टू यूज इज व्हाट, इन दिस ट्रायंगल कैन आई डू दिस थिंग cos थीटा, दैट cos थीटा इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse. What is adjacent here? Adjacent is what, AB. So can I write AB, yes or no, AB upon, this is your displacement S, actual displacement S, can I write AB by S? ये तुम लोग का S है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, जब यहाँ से फोर्स अप्लाई करो बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, बट हम लोग को फाइंड करना है अलोंग दिस डायरेक्शन, हम लोग को फाइंड करना है अलोंग दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तुम लोग का क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, बट हम लोग को फाइंड करना है अलोंग this direction. So how can I find along this direction? क्या किया, cos theta is equal to AB by S. Simple, right? अभी क्या करूंगा, AB is equal to S cos theta. सिर्फ मैंने रीअरेंज किया, S वहां पे चला गया, रीअरेंज किया, so AB is equal to क्या हो गया, S cos theta. What was our earlier formula? W is equal to क्या था, F into क्या था, AB. हम लोग को क्या फाइंड करना था, along AB ना, along horizontal direction फाइंड करना था, इसलिए मैंने AB लिखा था। This was your actual displacement, but we need to find along what horizontal direction. So AB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो W is equal to क्या होगा, F into S cos theta. So whenever you need to find your work done, ठीक है, and your force and displacement are in what different direction, use this formula.
W is equal to S cos theta. That means in this case what we have done, your force and displacement are in the which direction? Same direction. I have made the component of displacement along the force. I have made the component of a displacement. Yes or no? Component of displacement along the force. मतलब उसके डायरेक्शन में ही चाहिए मुझे. So displacement ये था मेरा, उसको चेंज करके displacement ये कर दिया. Yes or no? ये डायरेक्शन में कर दिया मैंने. So by applying this formula, ठीक है, हम लोग ने एक्चुअली क्या किया, वही क्या, AB है ना, तो AB क्या हो जाएगा, AB is equal to S cos theta, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, along this direction. डिस्प्लेस कितना हो रहा है, ये रहा, यहाँ से ये इतना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है. मैथ्स का थ्योरी, मैथ्स में पता ना, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने sin theta cos theta, so we can apply this way. क्लियर है? यस. दैट मींस AB विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, S cos theta. समझा? सो हम लोग को फाइन लिखना क्या होता है, एक्चुअल हम लोग का क्या रहेगा, W इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F इंटू क्या होना चाहिए, AC. बट वी कैन नॉट फाइंड AC, राइट? AC नहीं लिख सकते बिकॉज अलोंग क्या चाहिए हम लोग को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो मैंने क्या किया, बस सिंपल AC के जगह पे AC इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को पता है ये AC है, राइट? ये S लिखा, वो मेरा AC है. सो कैन आई राइट AC इज इक्वल टू AB बाय cos थीटा. यस और नो, AB बाय cos थीटा. ये AC वहां पे चला गया, AB बाय cos थीटा हो गया. यस और नो? या फिर AB सिंपल, मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या लिखूंगा, AC इज इक्वल टू AB cos थीटा. ठीक है. व्हाट इज AC? AC इज योर, यहां पे हम लोग ने पढ़ा ना, ठीक है. एक्चुअली क्या लिखूंगा मैं, W इज इक्वल टू F इंटू AC. AC तुम लोग का है ना, मेरा फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट AC हो रहा है. सो मैंने AC की जगह पे सिर्फ क्या लिख दिया, W इज इक्वल टू F. AC की जगह पे क्या लिख दिया, ये AB cos थीटा. बस चेंज किया मैंने, टर्म्स को चेंज कर दिया. मेरे को अलॉन्ग AB चाहिए था, इसलिए मैंने AC का वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट किया. एंड ऑफ द डे तो वही हुआ ना, AC के टर्म्स में ऐसे मैंने रीअरेंज कर दिया. आंसर मेरा वही आने वाला है. गेटिंग माय पॉइंट? ये AC को इक्वल टू समथिंग वैल्यू पुट कर दिया मैंने. समथिंग क्या है तुम लोग का, AB cos थीटा. यस और नो? AB cos थीटा, तो AB cos थीटा. यस, मेरा AB cos थीटा हो गया ना, सिंपल एज इट इज. समझा तुम लोग को कैसे आएंगे, क्लियर है? यस, yes or no? So this is the way you can do that. Now this was your basically displacement along your force. Yes or no? Finding the component of the displacement along the force. Now the second is what? Finding the component of force along the displacement. ठीक है, along the displacement करना है. सेम डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज होगा. यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा. यहाँ पे आगे मेरा क्या बॉक्स है, ठीक है. ये क्या तुम लोग का A, ये B और ये C हो गया. ठीक है. फोर्स कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, राइट. सो मैं फोर्स है ना, फोर्स उसको उसका डायरेक्शन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा. सो हाउ कैन आई चेंज द डायरेक्शन? आई कैन चेंज द डायरेक्शन. अगर ये मेरा बॉक्स इधर है तो आई कैन आई चेंज द डायरेक्शन लाइक दिस. यस और नो? ये एक्चुअल फोर्स ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है. और ये क्या हो गया मेरा, मैंने फोर्स को चेंज कर दिया, ये रहा. F dash लिखता हूं, ये F हो गया. एक्चुअल फोर्स इज अप्लाइड इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट. बट मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करके F dash कर दिया, सो दैट मेरा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन हो, अलोंग डिस्प्लेसमेंट. कंडीशन क्या पड़ रहा है, ठीक है. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. यस और फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन, ये रहा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट. इसलिए मैंने फोर्स को ऐसे चेंज कर दिया, वापस ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा. यस और नो? ये तुम लोग का जो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म होगा. तो ट्राइंगल फॉर्म जो हो रहा है, ठीक है. सो कैन आई राइट द ट्राइंगल हियर, दिस इज योर 90 डिग्री. यहाँ पे तुम लोगों का ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. ये ऑपोजिट एंगल्स हो गया, राइट. सो ये थीटा, ये भी थीटा हो गया, क्लियर है. सो ये थीटा है. अभी चाहिए क्या हम लोग को, वी रिक्वायर व्हाट, अगर ये ट्राइंगल है, सो वी नीड व्हाट, अगेन ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट. एंड ये क्या हो गया तुम लोग का, एडजेसेंट. ठीक है. ऑपोजिट चाहिए तुम लोग को, नहीं, वी नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑपोजिट थिंग. ये नहीं चाहिए हम लोग को. हम लोग को क्या चाहिए, दिस इज योर एडजेसेंट एंड दिस इज योर व्हाट, हाइपोटेन्यूज. क्लियर है? ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तुम लोग का एडजेसेंट है. सो हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए. ठीक है. व्हाट आई डू, आई जस्ट ड्रॉ अ जूम वर्जन ऑफ दिस ट्राइंगल. क्या करूंगा मैं, ये तुम लोग का एक्चुअल फोर्स है, ये तुम लोग का अलोंग दिस 90 डिग्री यहाँ पे, क्लियर है. ये तुम लोग का क्या है, थीटा है, क्लियर. ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला ये क्या होगा तुम लोग का, ऑपोजिट, क्लियर है. यस. ये तुम लोग का क्या, ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा अगेन एडजेसेंट। वापस क्या चाहिए मेरे को, ये एडजेसेंट चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो वापस क्या अप्लाई करूंगा, कॉस थीटा। एज सिंपल एज दैट। क्या करूंगा, कॉस थीटा। हम लोग को पता है W इज इक्वल टू क्या, F इंटू S। सो F इंटू क्या है, AC, F इंटू क्या हो जाएगा S। यस और नो, F का वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज F, ये रहा F यहाँ पे, ये रहा F, दिस इज योर F। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F। F का वैल्यू वापस कैसे फाइंड करेंगे, cos थीटा। वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या है तुम लोग का, ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूं यहाँ पे, गिवन एज ये N, ये तो A था ही, NAP, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PNA वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम लोग का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है तुम लोग का, व्हाट इज एडजेसेंट, NA, ठीक है। एडजेसेंट का वैल्यू क्या है, NA, यस और नो, NA अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, PA अपॉन PA, यस और नो। सो कैन आई राइट ये cos थीटा, राइट। सो कैन आई डू वन थिंग, आई कैन राइट cos थीटा इनटू PA इज इक्वल टू क्या, NA, यस और नो। व्हाट इज योर NA, ये तुम लोग का NA, राइट, यस और नो, ठीक है। समझा तुम लोग को, क्लियर है, यस। सो व्हाट इज NA, NA तुम लोग का एक्चुअल फोर्स हम लोग को डायरेक्शन में फाइंड करना, राइट। सो यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या आएगा तुम लोग का, NA, यस और NA इंटू S तो पता ही है, NA, F की जगह पे NA लिखूंगा क्योंकि ये रहा ना तुम लोग NA, ये डायरेक्शन में तुम लोग को फाइंड करना है। अलॉन्ग व्हाट, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, तो ये NA है ना तुम लोग का, यस और नो, दिस इज योर NA। तो NA की जगह पे क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, cos थीटा PA। सो cos थीटा इंटू PA इंटू S। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA, PA क्या है तुम लोग का, F, फोर्स है ना, वही तो एक्चुअल फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा F इंटू S। एंड ऑफ द डे क्या हो गया, फर्स्ट वाला का ही फॉर्मूला आ गया ना, W इज इक्वल टू क्या हो गया, W इज इक्वल टू cos थीटा इंटू F इंटू S, और F इंटू S इंटू cos थीटा, वन एंड द सेम थिंग, ऑल आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। तो कोई भी ऑर्डर हो, ऑर्डर डजंट मैटर, समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या फाइंड किया, वी फाउंड आउट फोर्स, ये फाइंड किया, फोर्स NA along the direction of what, displacement, yes or no। so if you notice, ठीक है, इसका कोई जरूरत था नहीं, हम लोग ने सिर्फ स्टडी किया है। एंड ऑफ द डे कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। yes or no। so what is the final formula, final conclusion formula is that we'll never write, ठीक है, W is equal to FS, ये नहीं लिखे हम लोग, W is equal to FS cos theta, this will be your final thing always। Now there are three cases, case number 1 when the theta is equal to 0, case number 2 when theta is equal to 90, and case number 3 when theta is equal to 180, ठीक है। Now if theta is equal to 0, right, cos theta 0 कभी होता है, ठीक है, तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देखा, cos theta 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या उसका, ठीक है, ड्रॉ किया था sin थीटा cos थीटा, sin 30 45, यस और नो, ठीक है, 30 sin 0 30 45 60 एंड 90। वैसे ही cos 0 क्या होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो वी नो दैट व्हेन द एंगल इज 0, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस इज 0 कभी होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम लाइन। तभी जैसे मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं, वापस से बॉक्स लिया, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दिस, ऐसा अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दिस, 0 ना, देयर इज नो एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दिस, दे आर अलोंग पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब एंगल 0 होता है ना, दे आर अलोंग पैरेलल लाइन, यस और नो। जो डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो। दैट मींस एंगल बिटवीन इन दिस केसेस, जब भी फोर्स इज अलोंग द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों एक्चुअल में क्या एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है। तभी तुम लोग का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इज योर व्हाट फॉर्मूला। एंड व्हेनेवर योर दिस theta is equal to 0, मतलब force is along the direction of what, displacement, when your force is along the direction of displacement, that is why at that time my work done is maximum। क्यों, because ये टाइम पे मेरा वर्क डन मैक्सिमम क्यों होगा, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में, समझे, एक ही फोर्स जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मेरा बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, एट दैट मोमेंट योर वर्क डन विल बी मैक्सिमम। सो इन केस 1 whenever theta is equal to 0, that work done is called as maximum work done।
called as what? Maximum work done. Yes or no? Now next is what? Theta is equal to 90. ये कभी होगा जब भी क्या होगा तुम लोग का when your force, ठीक है, and your displacement are in what? Perpendicular. मतलब ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बट बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है ऐसे. Yes or no? ठीक है, ऐसे हो सकता है क्या कभी? इज इट पॉसिबल कि फोर्स डायरेक्शन में और मेरा बॉडी 90 डिग्री से डिस्प्लेस हो रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये टाइम पे मेरा क्या रहेगा? ठीक है, ये रहा, मैंने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे. ठीक है, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये मेरा बॉडी है ऐसे परपेंडिकुलर, तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, राइट? सो एट दैट मोमेंट cos 90 is 0. दैट मींस यहाँ पे अगर cos 90 डालूंगा तो वर्क डन क्या रहेगा? यहाँ पे वर्क डन इज 0. सो whenever the direction of force is perpendicular to what direction of displacement, work done is said to be 0. and obviously 0 होगा. ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है जो perpendicular होगा. ये डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और बॉडी ऐसे जा रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी ऐसे जा रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. नेवर पॉसिबल. दैट्स व्हाई वर्क डन क्या होगा? 0. बॉडी मूव ही नहीं होगा. वर्क डन इज 0. क्लियर? एंड द लास्ट, द थर्ड केस. यहाँ पे थर्ड केस, यस और नो? थर्ड केस में क्या होगा तुम लोग का? थर्ड केस, ओके. थर्ड केस इज 180. दैट मीन्स the direction of force and the direction of displacement are in the opposite direction. That means if I draw a diagram, that means जो डायरेक्शन यहाँ पे घेरा तुम लोग का, यहाँ पे तुम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किया एंड ये बॉक्स है, बट बॉक्स इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन. नाउ यू से सर हाउ इज इट पॉसिबल सर कि मैं अप्लाई तो फोर्स ये डायरेक्शन में कर रहा हूँ बट बॉडी पीछे आ रहा है? दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स. यस और नो? The friction force is greater than the applied force, body obviously opposite direction में आएगा ना. यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने F1 किया, यहाँ पे F2 है. ये जो F2 है तुम लोग का क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है. क्या है? फ्रिक्शन फोर्स. When your F2 is greater than F1, मतलब your friction force, ठीक है, is greater than the force applied, तो this will travel in the opposite direction ना. Yes or no? बॉडी डिस्प्लेस होगा. मेरा जो फोर्स, जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो ये है राइट हैंड साइड, तो बॉडी डिस्प्लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड में बिकॉज ऑफ द ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स. एट दैट मोमेंट योर बॉडी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब वहां पे क्या होगा? 180 डिग्री होगा ना. समझा? मतलब एंगल इज 180 डिग्री. फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो एंगल बिटवीन दिस इज व्हाट? 180 डिग्री शिफ्ट मारा, राइट? यस और नो? 180 डिग्री. सो एंगल cos 180 का वैल्यू है -1. यस और नो? तो वर्क डन विल बी नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना. ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉक्स, मेरे को करना है बॉक्स ये डायरेक्शन में, बट बॉक्स जा रहा है ये डायरेक्शन में. मतलब मेरा अनडिजायर्ड जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन में जा रहा था. दैट मींस वर्क डन विल बी नेगेटिव. सो इन केस 3 व्हेन एंगल इज थीटा इज व्हाट? 180 डिग्री. योर व्हेन थीटा हियर इन केस 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वर्क डन इज नेगेटिव. यस और नो? क्लियर है? अगेन वो मैक्सिमम होगा. यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है? वर्क डन इज 1. मतलब ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा. इसका वैल्यू क्या है? -1. both the value will be same and angle theta is equal to 0, ठीक है, and angle theta is equal to 180, the magnitude will be same because एक का आंसर 1 है, दूसरे का -1 है. थीटा 0, cos थीटा 0 1, cos थीटा 180 is -1. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. सो रिमेंबर दिस. ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क डन हो गया, ये तुम लोग का मिनिमम वर्क डन हो गया. क्यों? बिकॉज 0 है, उससे तो हो ही नहीं सकता. यस और नो? और नेगेटिव पूछा तो ये नेगेटिव वर्क डन पूछा तो कभी रहेगा तुम लोग का? थीटा इज इक्वल टू 180. यस और नो? क्लियर है? सो मैक्सिमम वर्क डन व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0, मिनिमम वर्क डन व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90, and negative work done when theta is equal to what? 180 cos theta. Clear? Yes. So this is what all about what we did about work done. Yes. Clear? Yes. So yes, yeah, again some example, everything is done. Okay. Now the next is what? That work done, okay, by the force of gravity. Work done by the force of what? Gravity. Yes. देखते हैं work done by the force of gravity में क्या होता है. अभी जो we know what is potential energy, right? What is potential energy? Kinetic energy हम लोग को पता है. फिर potential energy, तो potential is also known as what? Gravitational potential energy, which is equal to mgh. Yes or no? We know this, right? mgh. Clear है? So we know that this is mgh. Clear है? So we know we also have a formula. W is equal to K F into S, right? What is the formula for F? हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा लॉ
न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स विच लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या है, ma मा, ठीक है, कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर, सो व्हाट आई गेट, W will be equal to क्या रहेगा, m a into s, क्लियर है. If I say if a is equal to g, that means acceleration is equal to what, acceleration due to gravity, ठीक है. If it is equal, so can I write W is equal to क्या है, m g into s. S is a displacement, that means वो height ही रहेगा कितना डिस्प्लेस हो रहा है. So can I write s की जगह पे h. So this is your work done in terms of what, your gravitational energy, yes or no. That means W is equal to F into S. मैंने यहाँ पे क्या किया, F की जगह पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, which is F is equal to ma. So substitute किया. Now the condition is if your acceleration, ठीक है, whatever acceleration, अभी potential energy, right, मतलब body is moving upwards, ठीक है, पोटेंशियल, उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है. सो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ बॉडी का, ठीक है. यू आर लेट्स से क्लाइंबिंग अप, ठीक है, यू आर क्लाइंबिंग अप, दैट मींस बॉडी इज व्हाट, सेविंग एनर्जी, यस और नो. क्लाइंबिंग अप तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस और नो. सो व्हेनेवर दिस इज द केस, ठीक है, जब ये एक्सेलरेशन, तो कंडीशन क्या है, दैट ए इज हैज टू बी इक्वल टू जी, मतलब ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए का वैल्यू वो टाइम पे क्या होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर तब भी होगा, तभी मैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, mgh होगा, क्लियर है ना. अभी दो चीज है, जब भी मेरा w इज इक्वल टू क्या है, mgh, g is negative. There are two cases, g is negative and g when it is positive, yes or no. मतलब not exactly g, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, there is something called as free fall, जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, फ्री फॉल. इफ अ बॉडी इज व्हाट, फॉलिंग फ्रॉम अबव, ऐसे नीचे गिरा है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल. सो इफ योर बॉडी इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट मींस अगर मैं बॉडी नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी कहां पे एक्ट करता है, टुवर्ड्स अर्थ, मतलब डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, यस और नो. उसको नीचे खींच रहा है, मतलब डाउनवर्ड्स. सो ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. सो इफ योर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट, ग्रेविटी, समझा, मतलब बॉडी इज कमिंग डाउन. So at that moment your g का value is what, positive, yes or no. g का value is what, positive, समझा. When body is what, coming down, so when our body is coming down, it is coming in the direction of what, gravity. But when our body is going up, this is the way body is going up. At that moment your body is in the opposite direction with respect to your acceleration due to gravity. So at that moment your gravity will be negative. That means if I talk about w is minus mgh, that means body is traveling in which direction, upward direction. When w is equal to what, mgh, and it is positive, body is traveling in what, downward direction. So you have to remember this very carefully. Okay, g positive कभी होगा, when the direction of what body is along the direction of what, gravity, which is downwards, yes or no, समझ रहे. And g negative कभी होगा, when your body is traveling in the opposite direction, ठीक है, with respect to your gravity. तो gravity नीचे आकर बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर फेंक रहा हूं, ये रहा, ऊपर गया, वापस नीचे आया पहले, बट बॉडी ऊपर गया ना, बॉडी ऊपर गया, मतलब उसका वो टाइम पे जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, यस और नो. सी दे हैव व्हाट दे हैव रिटन, ठीक है, सिमिलर क्या है. सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी इज सेम वेदर अ पर्सन कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग द स्टेयर्स और स्लोप, कमिंग डाउन. सिमिलरली इफ अ बॉडी ऑफ अ मास गोस अप थ्रू अ वर्टिकल हाइट, either directly or through a stair or slope or anything, the work done W is minus mgh is done by the force of gravity on the body. Yes, that means अगर it is going what क्या लिखा है यहाँ पे, vertically up, higher, ऊपर जा रहा है, तभी work done तुम लोग का minus mgh है. When it is coming down by any means of source, ठीक है, और directly आ रहा है with the slope or whatever it is, at that time your W is equal to क्या होगा, mgh होगा. That means the final thing will be what, W is equal to क्या होगा, Fs in is equal to क्या होगा, mgh. This is the final formula which you have to remember. ठीक है, W is equal to Fs is equal to क्या आएगा, mgh. Clearly समझा. This is what all about work done, what we did. ठीक है, अभी unit of work done which is pending, will do that. Unit of work done, अभी work done का unit. Work done is what, again a kind of energy, right? Energy बोला था. Energy is what, basically the amount of the capacity to do work. So work done is also one form of energy, right? We are doing work, we are giving some energy, applying force. So अगर मैं W is equal to क्या लिख रहा हूँ, F into S लिख रहा हूँ. So what is force? Newton
इंटू क्या रहेगा मीटर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है. सो वर्क डन का यूनिट क्या है न्यूटन इंटू मीटर. यस और नो. अगर मेरे को 1 क्या करना है ये इसका यूनिट क्या है जूल्स. वर्क डन एनर्जी का यूनिट क्या है जूल्स राइट. इफ आई नीड टू डू वर्क ऑफ 1 जूल I required 1 Newton of force and it should displace by 1 meter. So if I need to do 1 joule of work, I need 1 Newton of force and body will displace only what 1 meter. Yes or no? So this is your what the unit of our work done. So work done is measured in what joules. Okay, capital J. Force is measured in newtons and displacement is measured in meters. Yes or no? Okay. Now this is all about basically SI units. Okay. Now SI units तो हो गया. We also have what CGS unit. तो CGS unit for work done. We have CGS unit. जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास W है, ठीक है, तो उसका क्या है SI unit क्या है तुम लोग का SI unit क्या है joules है. ठीक है. वैसे तुम लोग का CGS unit is your erg. ठीक है. ERG अर्ग बोलते हैं. ठीक है. सो देयर इज जूल्स एंड ERG के बीच में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट इट्स SI एंड CGS यूनिट. ठीक है. सो व्हाट इज द रिलेशन हियर. ठीक है. रिलेशन क्या है तुम लोग का यहाँ पे जैसे हम लोग का क्या है फोर्स का SI यूनिट क्या है न्यूटन्स. वैसे ही फोर्स का CGS यूनिट क्या है डाइन. यस याद रहेगा डाइन. Dyne is a CGS unit of force and SI unit क्या Newton. So there is a relation between what joules and ERG. So what is the relation? We'll see. So relation between what joules and ERG. What is the relation between joules and ERG? Right. So joules and ERG. We know that 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. We know that, right? ठीक है. So 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne and 1 meter is equal to how much 100 सेंटीमीटर. ये स्टैंडर्ड चीज हम लोग को पता होनी चाहिए. हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये सब. 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne and 1 meter is equal to 100 centimeter. Can I substitute here? ठीक है. If I substitute here, what I'll get is what 1 joule is equal to 10 raised to 5 into 10 raised to 2. Yes or no? तो ये दोनों कौन सा यूनिट है सेंटीमीटर्स एंड डाइन कौन सा यूनिट है. ये ऑल आर CGS यूनिट. मतलब ये जो भी रहेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 ERG. समझा रिलेशन क्या है. yes or no? This is a relation between what joules and your मतलब SI unit of your joules and CGS unit of your joules. This is a relation which you have to remember. ठीक है. एंड लेट्स से अगर तुम लोग का जो वर्क डन एनर्जी है ठीक है वो हायर कंपोनेंट में हम लोग को क्या करना है मेजर करना है. सो फॉर दैट वी हैव किलो जूल्स, वी हैव मेगा जूल्स, वी हैव गीगा जूल्स. ठीक है. किलो मतलब 10 raised to 3, मेगा मतलब 10 raised to 6. यस और नो. वैसे गीगा मतलब 10 raised to क्या हो जाएगा 12. यस क्लियरली समझ रहे हैं. यस ठीक है. 10 raised to 9 माय बैड 10 raised to 9. ठीक है. समझ रहे. मेगा मतलब मेगा जूल्स मतलब 10 raised to 12. ठीक है. ये चीज याद रखें. तभी क्या आएगा एनर्जी इज वेरी हाई. ठीक है. बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तभी किलो जूल्स मतलब 10 raised to 3, मेगा जूल्स 10 raised to 6, गीगा जूल्स 10 raised to 9 एंड मेगा जूल्स क्या रहेगा तुम लोग का. सॉरी नॉट मेगा जूल्स. यू डोंट हैव मेगा जूल्स. सॉरी. किलो जूल्स 10 raised to 3, मेगा जूल्स क्या रहेगा 10 raised to 6, गीगा जूल्स क्या रहेगा 10 raised to 9. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू हैव. ठीक है. लास्ट समझा. तो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ योर व्हाट यूनिट ऑफ व्हाट वर्क डन, कन्वर्जन ऑफ योर SI to CGS unit. This was all about your work done. Next class we're going to study about what power, how power and work done are related to each other. Yes, I hope everything is clear. If you have any doubt, you can contact me. Thank you.